Didi had a very close contact relationship with Dadi Janki also. Didi lived with Dadi Janki when they were doing service together, and now Didi also had been appointed as joint chief of Brahmakumaris along with other uh, senior sisters. Didi is a chairperson of social service wing, which does a lot of service. Apart from the service, what we do, Dadi's nature, her discipline, the way she follows Amrit Vela, the way she follows the godly student life, the way she follows all the discipline, Srimat and Maryadas, all those qualities she has, the power of purity. Didi lived with all dadis. She has been had a very close association, contact, and relationship with all dadis, mama and baba. So a very honest, serviceable soul who had been doing Baba service since decades now. So Didi gives a lot of time in Madhuban Shantivan as well. She gives a lot of sustenance to all of us, directions and guidance and inspiration to all of us all the time. uh, there is so much to say about her, the service she did in India and different parts of the world as well. So, what qualities we have seen in dadis, and these didis are following them and they are distributing that love, that guidance, the directions through their practical life, what we see in their everyday daily routine, their discipline, and their love for Baba and everything. So we all welcome Didi with so much of gratitude that she could able to spend this much of time with her. So Didi, lots of Baba's love and lots of welcome to you on behalf of all of us, on behalf of Brother Marcelo and all Latin America family. Uh, चालू कर लूं? हाँ जी दीदी शुरू कीजिए। बीच में ठहरूंगा ना। दीदी 1 मिनट आप सभी को पहले दृष्टि देंगे, उसके बाद आप शुरू जरूर। कीजिए जी। चलो और भी ठीक करो आप थोड़ा। ओम शांति। आज हम सब विशेष दादी प्रकाश मणि, जिस प्रकाश मणि दादी ने सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, क्योंकि हमारी प्यारी दादी, उसका जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। दादी को जितना, और एक सेंटेंस बोलने के बाद जी, दादी का जितना बाबा के साथ प्यार था, उतना ही दादी का सेवा के साथ भी प्यार था। Today, I'll specially share the experiences with Dadi Prakash Maniji, the one who spread the light of knowledge in the entire world. The amount of Dadi had love for Baba, the same amount of love she had for service also. दादी के साथ हमारा कनेक्शन, दादी जब बॉम्बे में रहती थी सब तब से था, क्योंकि मैं भी बॉम्बे में सेवा के लिए उपस्थित थी और दादी भी उस समय पर सेवा पर थी बॉम्बे में। दादी में कितना उमंग और उत्साह रहता था सर्व को बाबा का संदेश देने का। कैसे दादी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाती थी और सदैव खुद भी बिजी रहती थी और हमें भी बिजी रखती थी। So I had a connection with Dadi Prakash Maniji when I was in Mumbai. I used to live with Dadi and we did lots of service together. Dadi had lots of zeal and enthusiasm for Baba's service. She used to organize lots of programs because she had the good wish that everyone should get Baba's message. और दादी का जो पुरुषार्थ था वो बड़ा सिंपल था। उनकी लाइफ तो सिंपल थी, परंतु पुरुषार्थ भी इतना सिंपल करती थी, जो दादी को देख के किसी को भी ऐसा लगता था कि हम भी अपना जीवन ऐसा ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। नहीं तो बॉम्बे ये माया में नगरी बाबा हमेशा कहते थे, परंतु दादी को देख के हमारी जैसी बहुत कुमारियां निकली
और जिन्होंने अपना जीवन बाबा के अर्पण किया। Dadi's Purusharat efforts were very simple and also a very elevated life she lived. Otherwise, a place called a city like Mumbai, where so much of Maya was there, Maya is still there, but still a lot of Kumaris got attracted when they saw Dadi, and they also got surrendered for Baba service. हमने देखा अपने सारे जीवन में दादी अथक होकर सेवा करती थी। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, दादी के डिक्शनरी में मैं शब्द नहीं था। उसको सदैव बाबा याद रहता था। वो मैं शब्द ही भूल गई थी। कभी हम लोग दादी को पूछते थे, दादी इस बात के लिए आपका क्या विचार है, तो वो हमें ऐसा जवाब देती थी। दादी कहती थी, देखो दादी का ये विचार है, मेरा विचार ऐसा नहीं कहती थी, दादी का ये विचार है। तो सुनने वालों को ऐसा लगता था कि दादी अलग है और बोलने वाली जो है वो अलग है, एकदम डिफरेंट दिखाई पड़ता था। दादी कैसी देह से डिटैच है इसका अनुभव होता था। Dadi had been a very tireless server, and the one important speciality which Didi saw in Dadi was Dadi never used to use the word I. When someone would go to Dadi and ask, Dadi, what is your opinion on this? Then Dadi would say, this is Dadi's opinion. She would never say, this is my opinion. So there was so much of detachment from the body that she never used the word I. She always used to say, this is Dadi's opinion. दादी की विशेषता हमने जो देखी, हम जो भी आपको विशेषताएं बता रहे हैं, हमने पूरा पूरा यही पुरुषार्थ किया कि हमें वो विशेषताएं अपने अंदर भरनी है। और हम इसी दृष्टि से दादियों के साथ रहे और दादियों से हमने सीखा कि कैसा सबको एक समान एक दृष्टि से देखना है और सबको बाबा का बनाना है। दादी ने कभी भी किसी को अपने में नहीं फंसाया और ना दादी कभी किसी में फंसी, ना कभी किसी के ऊपर प्रभावित हुई। वो बाबा की सच्ची सच्ची गोपी थी, उसको बाबा के बगैर और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। One more important speciality of Dadi Prakash Muni was that Dadi used to see everyone as equal, no partiality, no favoritism. And also, Dadi never got attached to any human being, nor she allowed anyone to get attached to her. She always did the service so that every soul should get connected with Baba. So she was a very true gopi of Baba. क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने दादी दीदी को दोनों को मुकर्रर किया और दादी को खास मुरली के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। दादी ऐसी मुरली सुनाती थी, बाबा की मिसिंग नहीं लगती थी, जैसा कि बाबा ही आकर के मुरली सुना रहा है ऐसा हमेशा अनुभव होता था। क्योंकि दादी का वो हंसता हुआ चेहरा, दादी का वो उमंग और उत्साह, और एकदम बाबा जैसा बोलता था उसकी लहर में चले जाना और सबको साथ में लेके जाना, ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। When Brahma Baba became Avyak, then Dadi Prakash Mani took over the responsibility of the yagya. And when she used to read the Murli, like no one would feel that we are missing Brahma Baba, because Dadi who took that place, and the way she used to read Murli, her resilient enthusiasm, the way she used to take everyone together in the service of the yagya and all that. So no one was missing Brahma Baba actually, because she did that much great role in fulfilling the place of Brahma Baba. दादी के अंदर माँ की ममता थी, इसीलिए शुरू से लेकर के जब यज्ञ की स्थापना हुई तो मम्मा को तो मम्मा कहते थे, परंतु दादी को छोटी मम्मा कहते। उसने माँ बन करके सबको संभाला और फिर जब बाबा ने उसको निमित्त रखा तब सचमुच उसने जगत माता का पाठ प्ले किया। Dadi used to give a lots of mother's love, like Mama. Now she, like everyone used to call her Choti Mama, that means small Mama, junior Mama, like that.
So she became the chief as well as a mother to everyone, like, world mother. She became that, and she gave sustenance to all like a mother. परंतु ये माँ तो थी पर ममता वाली माँ नहीं थी। अगर किसी की कोई मिस्टेक देखती थी तो उसका कान जरूर पकड़ती थी। नहीं तो जिसमें अटैचमेंट होती है ना, ममता होती है, तो वो क्या करते, अपने बच्चों की भूलें छुपाते हैं, उसको करेक्शन नहीं करते हैं। परंतु दादी खुलेआम सबके सामने जिसकी जो भूल होती थी वो बहुत सरल रीति से उसको बता देती थी, और बताने के बाद फिर खुद भी भूल जाती थी उसने क्या भूल किया है। और सामने वाला हमेशा के लिए अपने को करेक्शन कर लेता था। A very important thing Didi shared, that whenever Dadi Prakash Mani used to see a mistake in someone, when we have love with attachment, we don't correct that person. But when we have love with detachment, we try to correct that person. So that's what Dadi used to do. She used to correct that person with so much of love in front of everyone. And also she used to forget that what she told. She like not holding that those negativity in her mind. And the person whom she used to scold with so much of love and detachment, that person also used to correct himself. With that detachment and also love, she used to correct everyone. हमने खुद अनुभव किया। अभी अभी दादी करेक्शन देगी और थोड़े समय के बाद देखेंगे तो दादी को वो भूला हुआ होगा, फिर जैसे कि वैसी हो जाएगी। इसीलिए सबको दादी के लिए बहुत प्यार रहता था, और दादी को छोटे बड़े बूढ़े सबके साथ अति प्यार था, जैसा बाबा का प्यार था। तो दादी का जो माइंड था वो बहुत क्लियर था। दादी दादी का माइंड एकदम क्लीन होने के कारण, क्योंकि दादी ने कभी भी किसी का अवगुण देखा नहीं और उस अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखा। क्या हो रहा So Dadi, when she used to correct someone, because she used to get a lot of complaints about all, dedicated brothers and sisters, so she had to correct because she was in that position. But she never used to keep that negativity, the complaint she received in her mind. Being an instrument, she used to correct, and then she used to become detached. She had so much of love for all the people, irrespective of their age or seniority, even the older people. Her mind was so clear, and Dadi never saw defects of any soul in her life. उसके कारण दादी की मनसा साफ होने के कारण दादी की बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर है, और बाबा के साथ एकदम क्लियर कनेक्शन होने के कारण दादी भले ध्यान में नहीं जाती थी ट्रांस में, परंतु दादी को बाबा हर बात हर डायरेक्शन देता था, और दादी उसी अथॉरिटी से आके बोलती थी, आज मेरे को बाबा ने ये बताया। और जो दादी बोलती थी वो सब बहुत खुशी से उसको फॉलो करते थे। Dadi's intellect was so clear. She had such a clear connection with Baba. She was not a trance messenger, but her intellect was so clear that she could able to catch what Baba was telling. And she used to tell very clearly, very openly that Baba touched me this today, and everyone would accept whatever she was telling with so much of love and respect. और हमने खुद अनुभव किया कि दादी ने जो भी प्रोग्राम दिया या जो भी डायरेक्शन दिया, वो दादी के मुख से जो बोल निकलते थे वो सत्य होते थे, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई और सफाई थी। जैसी अंदर वैसी बाहर थी, तो सच्चे दिल पर तो हमेशा साहब राजी रहता है। इसीलिए बाबा के दादी के अंदर सफाई होने के कारण उसके हर बोल सत्य होते थे। Dadi was so neat and clean. Dadi's mind and intellect and heart was everything so crystal clean. Our directions were also true, because that faith should be there. That's why everyone would accept whatever directions she used to give, whatever decisions she used to give, because everyone knew that her mind and intellect were very clear, and they were very much connected with Baba. देखो अभी
पहले तो एक छोटा सा पांडव भवन था। बाबा अव्यक्त होने के बाद इतने बड़े बड़े भवन बने। ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, और उसके बाद शांति वन जो था, ये जगह लेनी थी। और उस समय दादी ने बाबा से डायरेक्शन लेकर के ये इतनी बड़ी जगह लिया और आज इसका इतना विस्तार किया। तो हम दादी को बोलते थे दादी, क्योंकि हमारे को तो माउंट की ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लगती थी, वो हरियाली अच्छी लगती थी। तो हम कहते थे दादी इतनी बड़ी जगह नीचे देके क्या करेंगे आप, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि हम तो ऊपर ही इतने लोग भी ज्यादा थे नहीं। तो हम समझते थे इधर ही आएंगे, इधर से ही चले जाएंगे। तो दादी बोलती थी नहीं, आप देखना आगे चल के बहुत बाबा के बच्चे बढ़ेंगे। और अभी हम देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा दादी ने डायमंड हॉल बनवाया, ये भी छोटा हो जाता। और दादी ने ये पक्का कराया कि देखो ऐसा है, अगर स्थान बनेगा तो जरूर क्या होगा, जरूर लोग आएंगे। तो सचमुच हम देखते हैं जितने स्थान बढ़ते जाते हैं, उतने उतने हमारे भाई बहन भी बढ़ते जा रहे हैं। So we all know that there was only one Pandav Bhavan before and only one Om Shanti Bhavan. When the place of Shantivan, it was the discussion was going on to buy this place of Shantivan. Everyone ज्ञान suggested that सरोवर, like even Gansarovar ज्ञान, also. When the place for Shantivan had to be purchased, everyone suggested Dadi, we don't really need this big place because everyone used to like Mount Abu very much. It was a very pleasant weather and all. But Dadi had a very clear vision that through Shantivan lots of service will happen and lots of people will come. So Dadi's that much far-sightedness was very clear that that's why Dadi bought the place to build Shantivan. And now we can see so much of services happening in Shantivan and so many souls are coming here. अभी दादी को हमेशा ये ध्यान रहता था कि जो भी हमारे भाई बहने हैं, कितना पैसा इकट्ठा करके, इकोनॉमी करके, फुड़ी फुड़ी तलाव करते हैं, सब अपना सहयोग इसमें देते हैं। इसीलिए जो भी समझो स्थान बनता है उसको उसी समय यूज करना चाहिए। तो शांतिवन पूरा बना भी नहीं था। दादी ने कहा अभी ये थोड़ा भी बना है ना, तो अभी यहाँ पर हम बाबा को बुलाएंगे और सब बच्चों को बुलाएंगे। तो दादी ने उस समय यहाँ शांतिवन में टेंट लगा करके और भाई बहनों को बुलाया। बड़ी संख्या में भाई बहने आए। अव्यक्त बाप दादा की भी पधरामणी हुई और बहुत भाई बहनों ने उसका लाभ लिया। तो हमने देखा जैसा दादी बाबा का जो यज्ञ का एक एक पाई थी ना, उसकी बहुत ही ध्यान रखती थी। और जो करने वाले थे उनकी बड़ी कदर रखती थी कि इनके एक एक पाई से इनको कितना बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, तो इसका पूरा पूरा यूज होना चाहिए। ये ध्यान दादी को खास रहता था। Dadi used to follow very strictly the economy rule which Baba teaches us because Dadi knew that every individual, every Baba's child who gives even a single rupee in Baba's yagya, that should be utilized in a worthwhile way. Like when Shantivan was even under construction, the whole campus, Dadi made arrangements to put tents and then she invited so many brothers and sisters so that they can come and take benefit. Even Avek Bap Dada also came in that situation because Dadi's pure wish was whatever we are building, any building, construction, any campus we are developing, that should be utilized in a very worthwhile way. That pure wish she had always. और खास हम देखते थे कि दादी का ये जो लक्ष्य था इकोनॉमी का, दादी थी बड़ी फराग दिल। कोई भी आते थे, जैसा बाबा बच्चों की बहुत खातिरी करता था, मेहमान निवाजी करता था, ऐसा ही दादी हर बच्चे की बहुत मेहमान निवाजी करती थी। छोटे बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है, उनको पानी पूरी अच्छी लगती है, जिसको जो अच्छा लगता होगा वो बनवाएगी। बहुत बड़े दिल से खिलाती थी। परंतु इकोनॉमी का भी जरूर ध्यान रखती थी कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए बाबा के भंडारे का। उसको इस बात का बहुत ध्यान रहता था। तो फराग Uh, दिल भी थी और इकोनॉमी भी थी। दादी के पास बैलेंस था हर एक बात का। So Dadi always had balance between everything. She was generous also, but she used to follow economy rule also.
Like whoever would come to Madhuban, they always try to feed them very nicely. So for example, if children used to come in children's program, that they would feed them ice cream, pani puri. Like she used to satisfy everyone, those who used to come to Madhuban. But she always had the balance of generous heart as well as economy, not wasting anything. और हमने देखा दादी को जो बाबा की प्रेरणाएं मिलती थी वो बड़ी एक्यूरेट रीति से वो कैच करती। एक बार ऐसा ही बैठे बैठे दादी को विचार आया कि हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करें, मेगा प्रोग्राम करें भारत में, और उसमें लाख लाख लोग आने चाहिए। तो हम लोगों को, हमारी मीटिंग थी उस समय, तो दादी ने मीटिंग में अपना विचार बताया कि आज मैं बाबा के कमरे में बैठी थी तो मेरे को बाबा ने कहा कि तुम बड़े बड़े प्रोग्राम करो, लोगों को इकट्ठा करो। तो हम सभी ने कहा, उस समय तो हमारे पास प्रोग्राम में हजारों लोग भी नहीं आते थे, तो लाख लोग कहाँ से आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि दादी, लाख लोग कैसा इकट्ठा हो सकेंगे, इतने लोग इकट्ठे करना कोई सहज बात नहीं है। दादी ने कहा नहीं, बाबा ने मेरे को कहा है ना, बाबा के ऊपर उसका बहुत 101% फेथ था। बाबा ने मेरे को कहा है ना, करो, आप लोग करो, देखो कैसे लोग इकट्ठे होते हैं। और रियली हम लोगों ने बड़े बड़े शहरों में, छोटे भी गांव में हम लोगों ने प्रोग्राम किए। लाख तो क्या, परंतु लाख से भी ज्यादा एक एक प्रोग्राम में लोग आके करते हो। तो उनके संकल्प में इतनी ताकत थी, वो जो बोलेगी वो सब प्रैक्टिकल में होता था। Dadi, whatever touching she used to get from Baba, and she used to inspire all of us to do service. Uh, all of a sudden, Dadi told everyone that, or arrange big programs, mega programs, we used to call them in India. Dadi told everyone that millions, hundreds, and thousands of souls will come, but everyone was really shocked, like even thousands of people were not coming in any of the programs. How come, hundreds and thousands of souls will come? That was a question in everyone's mind. But Dadi's mind was very clear, and she told, this is a touching I got from Baba, you do. That's the direction she gave everyone, and as a result of which many big programs got arranged, and millions of souls got Baba's message. उसके बाद दादी को एक बार ऐसा विचार आया कि अभी शिवरात्रि में जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम है शिव के, उसके रथ निकाले जाने। तो दादी ने मीटिंग में वो बात निकाली, क्योंकि हर बरस के प्रोग्राम की जो मीटिंग होती है तो उसमें सब जगह के मुख्य मुख्य भाई बहने आते हैं, सर्विसेबल, और सारे प्रोग्राम बनते हैं। तो दादी को विचार आया कि रथ यात्रा निकाले। तो दादी ने कहा, तो सभी ने, जो भी 12 ज्योतिर्लिंगम थे, उनकी मॉडल बना करके, प्रतिमूर्ति बना के ट्रकों में ले करके, और सारे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चारों तरफ से रथ यात्राएं निकली, सारे भारत को कवर किया। तो इससे क्या हो गया, जब सारे भारत को कवर किया, एक एक गांव में रथ गए शिव भगवान के, तो वो देख करके लोगों के अंदर एक बहुत श्रद्धा जागृत हो गई, बहुत बड़ी भावना जागृत हो गई। पहले लोग समझते थे ये ब्रह्मा कुमारियां भक्ति को नहीं मानती है, ये ब्रह्मा कुमारियां जो है ये शायद हिंदू नहीं है, क्योंकि बिंदी बिंदी नहीं लगाते हैं तो समझते हैं ये हिंदू नहीं है। परंतु जब हमारी रथ यात्राएं निकली ना, तो रथ यात्राओं के बाद लोगों के अंदर से ये गलत फहमी दूर हो गई, और ये गलत फहमी दूर होने के कारण छोटे छोटे गांव में भी हमारी बहुत गीता पाठशालाएं निकली, और उसके बाद सेवा की बहुत बहुत वृद्धि हुई। दीदी, ये डायरेक्शन भी दादी ने ही दिया था ना, रथ यात्रा का? दादी नहीं दी है, दादी नहीं। Okay. Once Dadi gave direction to all during kind of like Shivratri festival. There are 12 Jyotirlingams are there in India. You might have heard about it. So Dadi told everyone that you should create fairs out of these 12 Jyotirlingam. We call them as Rath Yatra in India. And from Kashmir, the tip of India, and to Kanyakumari, the bottom of India, that fairs should move on.
and as a result of it, lots and lots of service happened in Bharat, because people had so many misconceptions about Brahma Kumaris, that we don't follow like any particular, we we don't follow devotion, we don't put bindi, tilak and all. So they had some negative impression about Brahma Kumaris. But after this service program, as directed by Dadi Prakash Mani, people got good bhavna, good feelings on us, and lot of service happened across India. हमने देखा कि बाबा ने जब दीदी दादी को दोनों को निमित्त रखा, परंतु दादी ने कभी अपने को हेड नहीं समझा। दादी हमेशा कहती थी मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, करण करावन हार स्वामी बाबा है। दादी का कभी सम्मान भी करते थे ना, तो दादी कहती थी ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो बाबा का सम्मान है। करण करावन हार स्वामी वो है, वो कराता है। और हमने देखा दादी के साथ जो दूसरी दादियां थी, जैसी ब्रिजेंद्रा दादी थी, निर्मल शांता दादी थी, मनमोहिनी दीदी थी, चंद्रमणि दादी थी, दादी हमेशा इनको अपना बड़ा समझ के और कुछ छोटी होके उनके आगे चलती थी। हम भी ब्रिजेंद्र दादी से पूछते थे, क्योंकि उस समय ब्रिजेंद्र दादी महाराष्ट्र की इंचार्ज थी। हम ब्रिजेंद्र दादी से कोई बात पूछते थे कि इस बारे में क्या करने का है, क्योंकि हम हमेशा चक्कर पर जाते थे, तो कहती थी बड़ी दादी से पूछो, प्रकाश मणि दादी से। तो प्रकाश मणि दादी से जब भी मैं प्रश्न पूछती थी, दादी ये क्या करना है, तो दादी कहती थी अरे संतोष, तेरे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, तू मेरे से क्यों पूछती। तो मतलब इतना इनका एक दो के लिए रिस्पेक्ट और प्यार था। So Dadi never used to consider herself as chief of Brahma Kumaris, head of Brahma Kumaris. She always considered herself as God's child, Baba's child only. She always had the faith that Karan Karavan Har Baba is doing everything. We are just the instruments. So when like Santosh Didi used to go to Brijindra Dadi, because Brijindra Dadi was the in charge for Maharashtra in those days. So she used to go to Brijindra Dadi and ask for any directions. Then Brijindra Dadi would tell, go to Dadi Prakash Mani. So Didi used to go to Dadi Prakash Mani to ask any direction or permission. Then Prakash Mani Dadi would tell, you had such a big Dadi with you, you need not to come to me for any direction. You can take permission from Brijindra Dadi, like that, because being that big authority, but still she used to give so much of love and respect to all other daddies. दादी और दीदी का दोनों का इतना प्यार था, हम लोग हमेशा कहते थे कि इनके दोनों के शरीर अलग है, परंतु इनकी आत्मा एक है। इतनी एकता में ये आपस में चलते थे, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि ब्राह्मण परिवार का इतना बड़ा वटवृक्ष जो है वो इतना विस्तार को पाया है। इतनी कन्याओं ने अपना जीवन समर्पण किया है, इतनी टीचर्स निकली है, इसका कारण इनका त्याग, तपस्या और सेवा थी। Like Didi Manmohini and Dadi Prakash Mani, they were so close with each other. Everyone would tell them they were two bodies with one soul or one heart, like that. That much close connection they had because of their renunciation, because of their tapasya, because of their service. Now we can see so many Kumaris and so many teachers dedicated their life for Baba's service and doing lots of service across the world, and so much of service also got established, and we are seeing the practical result of their renunciation and their tapasya. हमने इन दादियों से बहुत बहुत लाभ लिया, अपने जीवन को बनाया। दादी की महिमा तो जितनी करे उतनी कम है, बहुत दादी की महिमा है, परंतु हमें क्या लाभ मिला वो अभी मैं बताती हूँ। मेरा पर्सनल क्या अनुभव रहा, क्योंकि जब मैं शुरू में बोली Like बोलिएगा। Didi also had taken so much of benefit from Dadi Prakash Mani, and she created a very elevated life for herself. If I keep explaining about Dadi Prakash Mani's specialities, there is no end. But now I'll share what benefits I took from Dadi Prakash Mani. सिर्फ प्रकाश मणि नहीं, परंतु हमारा ड्रामा में इतना श्रेष्ठ भाग्य रहा, जो हमारे को सब दादियों का बहुत प्यार मिला, सब दादियों की बहुत परवरिश मिली,
और हमारा जीवन इन्होंने इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाया। क्योंकि जब मैं शुरू में ज्ञान में चली तो बाबा ने मेरे को पूना में जानकी दादी के पास भेजा। तो पहले पहले तो मेरे को वहां ट्रेनिंग मिली। उसके बाद मेरे को बाबा ने बॉम्बे में ब्रिजेंद्र दादी के पास भेजा, जहां मैं 25 बरस ब्रिजेंद्र दादी के साथ रही। तो मुझे कितना फायदा मिला होगा वो आप समझ सकते हैं। Didi had taken sustenance and love of all dadis, and she created a very elevated life of hers. When Didi surrendered herself for Baba's service, Baba sent her to Pune with Dadi Janki, and she got her first training from Dadi Janki in Pune. And then Baba sent her to Mumbai with Brijendra Dadi, and she lived with Brijendra Dadi for 25 years. So you can imagine that how much training Didi might have taken being with the Brijendra Dadi for 25 years. हमारा दादी दीदी के साथ और जो भी बड़ी दादियां थी, सब दादियों के साथ बहुत जिगरी प्यार था और बहुत कनेक्शन था। क्योंकि जब ओम शांति भवन बना, ओम शांति भवन बनने के बाद अपने पास प्रोग्राम चालू हो गए बहुत। तो जब प्रोग्राम चालू हो गए, ये कहाँ गायब हो गया उसमें, प्रोग्राम जब चालू हो गए अपने पास, तो उस समय पर कोई हैंड्स नहीं थे अपने पास, थोड़े लोग आते थे ना, तो हैंड्स नहीं थे इतने। तो हैंड्स न होने के कारण हम लोग हमेशा सेवा के लिए मधुबन में आते थे। तो मैं काफी काफी दिन आकर के मधुबन में ठहरती थी सेवा करने के लिए। तो उस समय दादी दीदी का मेरे को बहुत ही नजदीक से उनकी परवरिश मिली, उनका प्यार मिला, उनके डायरेक्शन मिले, उनसे शक्ति मिली, सब कुछ हमने उन लोगों से पाया। क्योंकि ये काफी दिन आकर के हम हमेशा भंडारे की सेवा संभालते थे, सबको भोजन खिलाने, क्योंकि खिलाने वाले लोग भी नहीं होते थे, बठियां होती थी, बाहर के प्रोग्राम होते थे। तो हैंड्स कम होने के कारण फिर हम टीचर्स बहने आकर के ये काम करते थे। और मुझे भंडारे में सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं वो ड्यूटी लेती थी। Yeah. So Didi used to spend a lot of time in Madhuban, like when Om Shanti Bhavan got built and constructed, and so many programs used to happen in Madhuban Pandav Bhavan. There were very less hands for help. So Didi used to spend a lot of time in Madhuban, and she used to do help in kitchen Baba's Bandara a lot, where to serve food through serving food. She used to serve a lot of people also. So many retreats also used to happen in those days. So she Didi got opportunity to spend a lot of time in Madhuban, do all round service also, and take lots and lots of directions, love and sustenance from daddies. और उस समय देखो क्या होता था, हम जब दादी दीदी को इतना नजदीक से देखते थे, हम हमेशा बात करते थे। दादी जो थी, हम कहते थे दादी माँ है और दीदी जो है वो बाप है। क्योंकि दादी क्या करती थी, दादी बहुत प्यार करती थी। अगर कुछ हो भी जाता था तो अच्छा 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 अच्छा, जाने दो ऐसा करके छोड़ देती। परंतु अगर कोई भूल होती थी तो दीदी जो थी, दीदी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो दीदी क्या करती थी, कान पकड़ती थी, नोट करा। दादी प्यार, दीदी भी प्यार बहुत करती थी, पर कान जरूर पकड़ती थी। तो इसीलिए हम हमेशा कहते थे ये जो जोड़ी है ना, ये दादी माँ है और दीदी जो है वो बाप है। इन दोनों में से हम लोगों को वो भाषण आती थी। Uh, Prakashmani Dadi and Didi Manmohini, like they were like Dadi Prakashmani was like mother, and Didi Manmohini was like a very strict father. For small mistakes here and there, Dadi Prakashmani would tell, "It's okay, no problem, don't worry." But Didi Manmohini was very strict, and she used to pull everyone's ears. So they used to tell Dadi Prakashmani as mother and Didi Manmohini as a very strict father. देखो, हम बृजेंद्र दादी के साथ इतना बरस रहे, तो नष्टो मोह कैसा बनना है। हाँ? प्रैक्टिकल जीवन में धारणाएं कैसी करनी है, दादी का जीवन देख करके हमने एक एक बातें दादी से सीखी। आज भी हमारे पास यहाँ चर्चा चल रही थी
कि दादी कितनी नष्टोमुआ थी, ब्रिजेंद्रा दादी। उसका एक हमने सीखा इसलिए बता तो उसका एक उदाहरण बता रही थी, टीचर्स मीटिंग चल रही ना, तो उसमें ये बताया कि दादी का जो लौकिक भाई था, बड़ा भाई, उनको इनमें बहुत मोह था, ब्रिजेंद्र दादी। और उसने बाबा को जब भी दिया, ये मतलब बहू करके दिया, बाबा ने इसकी मांग नहीं किया कि मेरे को ये बहू चाहिए। तो वो लोग बहुत शाहूकार थे बाबा से। उनके जो ग्रैंडफादर थे ना, उसके नाम से एक शहर था वहाँ, ढोलनदास करके। तो बहुत शाहूकार थे, तो वो समझते थे ये बाबा बहुत गरीब है, तो देने को तैयार नहीं था लड़की को। परंतु आखिर बाबा को बहुत यही था कि मेरे को यही बहू चाहिए। तो फिर उन्होंने समझो इसको बाबा को दिया। पर उस भाई को बच्चे नहीं थे, इनका जो बड़ा भाई था ना, उसको बच्चे नहीं थे। तो उसको इसके साथ बहुत प्यार था, बहन के साथ बहुत प्यार था। तो वो रोज, शादी भी हो गई थी ना, तो रोज मिलने को आता था बहन को, मुंह देखने के लिए। फिर वो तो ठीक था। पर जब ही बाबा की प्रवेशता हुई और ब्रिजेंद्रा दादी को निश्चय हो गया कि ये भगवान आया है, तो इसकी जीवन तो एकदम बदली हो गई। तो भी वो रोज आता था। तो फिर इसको अच्छा नहीं लगता था, ये क्यों मेरे से मिलने आता है। तो फिर इसने क्या किया, एक दिन जो पैरा करती थी ना, क्योंकि भाई तो नहीं होते थे ना, बहनें होती थी, तो उस बहन को पैरे वाली को बोल दिया, तुम उसको, आएगा ना वली राम नाम था उसका। आप इतना का ट्रांसलेशन कर सकेगी क्या, बंद जी करूं? हाँ दीदी, ठीक है। यहाँ तक करती हूँ। Actually, हाँ Didi तो lived with Brijendra Dadi for such a long time. She learned so much from Brijendra Dadi, especially about becoming conqueror of attachment, how to conquer attachment. Like she shared a very small story about how to conquer attachment. Brijendra Dadi had a lot of attachment with her elder brother. It usually happens. So she had very much attachment with her elder brother. Brahma Baba always wanted to have Brijendra Dadi as for his son, as like to get marry Brijendra Dadi with Brahma Baba's son. That's what Brahma Baba always had, that pure wish. But when Brijendra Dadi recognized that God has God like God has come in Brahma Baba's chariot, so Didi, क्योंकि उसने देखा था ना बाबा को आते हुए, तब हाँ, या Brijendra Dadi अवतरण saw, उसी ने देखा। जी दीदी, Brijendra Dadi practically saw how Shubaba entered Brahma Baba's chariot. She was a very live example of that. So she became very much conqueror of attachment. But still, her elder brother would come to meet Brijendra Dadi, which Brijendra Dadi didn't like. So what she did was, she informed the sister who used to take care of security department. She told that when he comes, don't allow him to meet me. दीदी उसने मना कर तो दिया डायरेक्टली कि आप हाँ, नहीं। उसने उसको हाँ, इसने फिर वो जब भी आया उसको मिलने को, तो सिक्योरिटी ने बोला कि उनका नाम, उनको सती बोलते थे वहाँ, पियर घर का नाम सती था इनका। तो जी बोला वो आपसे मिलना नहीं चाहती है। तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका तो अति प्यार था, अटैचमेंट थी। वो सीधा गया, वहां एक बड़ा सेठ था, उसका नाम था रतनलाल मोटा। तो ये सीधा उसका भाई रतनलाल मोटा के पास गया और बहुत रोया जाके, इतना रोवे, बोला वलीराम सेठ आपको क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? ये भी तो बड़ा सेठ था। बोला आप क्यों रो रहे? तो इसने कहा देखो क्या समय आ गया है, मेरी बहन सती मेरे से मिलना नहीं चाहती है, और मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। तो फिर उसने, जो रतनलाल मोटा था ना, जिसके पास ये गया था, उसने बाबा को फोन किया और बाबा को बोला बाबा ये सती क्या करती है, ये मिली नहीं इससे, देखो ये वलीराम बेचारा कितना रो रहा है। तो बाबा को तो मालूम ही नहीं था, इसने मना कर दिया। तो बाबा ने इसको बुलाया, बाबा ने कहा तुमने, हाँ बेटी, उसको वलीराम को मना किया क्या? बोला हाँ मैंने मना किया, वो रोज रोज का को आता है, मेरे को नहीं मिलना है उसे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, कोई दरवाजे पर आवे तो मिलना तो चाहिए। तो इसीलिए फिर उसको बुलाया
बुलाया, परंतु इसने क्या कहा, ये खुद बालकनी में खड़ी रही वहां और उसको रोड के उस तरफ खड़ा किया, बोला उधर से तू मेरे को देख करके और फिर तुम चला जाओ। तो वो बेचारा उधर खड़ा रहा, रोता रहा, उसको देख करके फिर चला गया। तो मतलब मर्जी वाह माना मर्जी वाह, फिर कोई नहीं अपना। When Brijendra Dadi became conqueror of attachment and she strictly said no to her brother, his name was Valli Ram. But Valli Ram was not happy because she was loving his sister so much. Then he went to Ratan Lal Mota, a person called Ratan Lal Mota, and he cried a lot. Why my sister is doing like this? I'm going to meet her, but she is saying no, don't come and see me. Then that Ratan Lal Mota, that guy, he called Brahma Baba that why Brijendra Dadi, her name was Sati, why is she doing like this? When her brother is coming to see her, she is saying, no, don't come and meet me because Brijendra Dadi became conqueror of attachment, but not her brother. So he had attachment with his sister. Then Brahma Baba explained Vijendra Dadi, don't do that. When someone comes to see you, you should meet them. Then Vijendra Dadi stood up in a balcony and her brother was so far away. Then she just said hi and bye, and she said with so much of love that you just see me from there only and you go back. Don't come and do this every day. Like that, she became conqueror of attachment all of a sudden when she recognized Shiv Baba. जी आप समझ सकते हैं हमको ऐसों की ट्रेनिंग मिली है जी तो उसका कितना असर हुआ होगा हमारे जीवन पर। तो हम आज जो भी आपको दिखाई पड़ते हैं उसके पीछे ये हमारी सारी दादियां हैं। इन दादियों के कारण ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ तक पहुंच करके बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। ठीक है। So you can imagine that we have taken training from such dadis who were so strict, who were so disciplined. You can imagine the impact of that training on our lives. So whatever we have become today, it's all because of the directions, the discipline, the love, the sustenance, whatever we have taken from all dadis. That's why we could able to become what we have become today. एक बात सिर्फ जानकी दादी की सुनाती है। जब मैं जानकी दादी के पास थी तो दादी को मैंने पूछा, दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो दादी ने मेरे को बोला, आप कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, एक बात सिर्फ ध्यान में रखो। वो कौन सी बात ध्यान में रखो? जो ब्राह्मण है, जितने भी ब्राह्मण हैं, वो सब कोटों में कोई है ना, परंतु आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि ब्राह्मणों में मैं कोई हूँ। समझा? वो मनुष्यों में कोटों में कोई है, आप ब्राह्मणों के अंदर कोई है, आप विशेष आत्मा हैं। तो आप हमेशा अपने को सर्व से न्यारा समझो। तो जितना जितना आप समझेगी ना कि हम इन ब्राह्मणों से न्यारी है, विशेष है, उतनी उतनी आपके अंदर विशेषता आती जाएगी। उस एक सेंटेंस ने हमारे जीवन को बहुत कुछ बना दिया। Yeah. ऐसा दादियों का So, एक एक डायरेक्शन। जी. हाँ बोलिए। Once Didi went to Dadi Janki and she asked, Dadi, what effort should I make? So then Dadi Janki told a very special thing that each and every Baba's child is one in, hundreds and thousands of people in the world, one in million like that. You should become a very special soul in Brahmin family now. You should become like every Baba's child is special itself, but you should become a very elevated, very special in Brahmin family also. So you should reach that elevated stage. So all of these directions which I got from all daddies, I like used to follow them and I became what I became today. ओम शांति करे अभी। uh, so पूछना है किसी brother, को कुछ? anyone would like to ask any question? It's a good opportunity. If you have any personal questions, you can ask. It's because Didi is very experienced. You can take There is benefit. no And if question yet, Didi. So we are telling people. Entonces, I was speaking a little in Spanish.
Se vocês têm perguntas, podem hacerla, Didi, ahora. क्या बोल रहे? वो दीदी स्पेनिश में क्या पूछ बोल? रहे दीदी कि कोई क्वेश्चन है क्या करके। हाँ, वो अपनी भाषा में सबको पूछ रहे हैं कि अच्छा। किसी के कोई प्रश्न हाँ है हाँ तो आप पूछिए। हाँ, स्पेनिश भाषा में पूछ रहे हैं दीदी। Didi, अच्छा अच्छा अच्छा। Mubarako for your new position. So congratulations for your new position. What does that mean to you as a person? दीदी ये भाई देखो ने मेरी आपको बात सुनो। कंग्रेचुलेट जी हाँ, दीदी, इन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया, आपको जो बाबा से यज्ञ से नया रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जॉइंट चीफ मिला है। तो आपको क्या लगता है बाबा का बच्चा होके, वो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आपको क्या फील हुआ एज ए पर्सन, वो पूछ रहे हैं दीदी। एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखो मेरी बात सुनो। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पहले से ही संभालते हैं, इसीलिए ये जो टाइटल वाइटल होते हैं, बाबा ने तो हमारे को कितने ऊंचे टाइटल दिए हुए हैं। हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाकी ये कार्य व्यवहार सुचारू रूप से चले, उसके लिए ये टाइटल देते हैं। बाकी मैंने तो कुछ नहीं समझा इसके लिए। हम तो ओके सो जैसे थे वैसे ही। yeah, Didi is saying that that title doesn't really mean anything to me. I have been looking after all the responsibilities of the yajna before also, and now also I'll be continuing to do that. Baba has given us so many elevated titles already. So to for yajna's administration and all that, that title means a lot to me. Otherwise, personally, that title doesn't mean anything to me. मैं स्वीकार नहीं करती ऐसे टाइटल। She says I don't और accept those titles anymore. Never. Very good. जरूरत नहीं है इन टाइटलों की। बाबा ने बहुत कुछ दिया हुआ है अपने को। और हमारा हम हमेशा अमृत वेले विशेष ये योग करती है कि ये जो यज्ञ, जिस यज्ञ में मम्मा बाबा हमारी दादियों ने और हमारे इतने लाखों भाई बहनों ने अपना रक्त सक्त मेहनत करके यहाँ तक यज्ञ को लाया है। ये यज्ञ यज्ञ निर्विघ्न चले, सुचारू रूप से चले, यही हमेशा हम इसके लिए विशेष योग करके और शुभ भावना देती है, बस और कुछ नहीं। So Didi shared that every day in Amrit Vela, Didi always does a special meditation so that all yagya service should happen very smoothly, very nicely, without any obstacle. Because Baba's yagya means it's unlimited. Baba, Mama, Dadis, and Didis, and every Baba's child has done so much to expand this yagya to this level. So that's why I always feel that Baba's Yagya should move on very smoothly without any obstacles, and lots of service should happen. This is a pure wish I always do when I do Amrit Vela every day. Didi, there are two questions here. First one, if Didi has met Brahma Baba and Mama. And the second, how to connect with Sukshma Vatan, with Sata region. दीदी दो क्वेश्चंस एक्चुअली। आप मम्मा बाबा से मिले हैं क्या करके, मैंने शुरू में बोला था, शायद किसी ने सुना नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे सूक्ष्म वतन से अपने को कनेक्ट करना है, सूक्ष्म वतन से देखो कैसे ऐसा है, कनेक्ट। जी मैं मम्मा से निकली हूँ। मम्मा बॉम्बे में आई थी। जी मम्मा बॉम्बे में जब आई तभी मैं मम्मा से जाके मिली। और मैं उस समय पर कॉलेज में पढ़ रही थी। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने कहा मेरे को वकील बनना है। मैं कॉलेज में थी। मम्मा ने कहा काले कोट वाला वकील नहीं बनना, समझा। मेरा लक्ष्य मम्मा ने उड़ा दिया। और मैं तो पहचानती नहीं थी, पहली बार ही मिली थी। मम्मा के सब लोग जो भी मिलते थे ना तो मम्मा के हाथ में हाथ देते थे। तो मैंने भी मम्मा के जब जाते थे तो हाथ देते थे। तो मैं भी जाते समय मम्मा के हाथ में हाथ दिया। तो मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को बोला ये हाथ अभी छोड़ना नहीं। अगर ये हाथ छोड़ेगे ना तो धर्मराजपुरी में धर्मराज आपको ये फोटो बताएगा कि आपने मम्मा का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया, समझा। तो मम्मा ने मेरे को वहां पकड़ लिया
और जब मैं मधुबन में गई, बाबा को देखा, तो बाबा को देखने के बाद फिर बाबा मेरे को, मैं उस समय तो 16-17 बरस की थी, मेरे को देखने के बाद बाबा ने कहा बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, इसको सेवा में लगना चाहिए। तो बाबा ने मेरे को वहां बांध दिया। फिर मैं वहां से आई नहीं, फिर मैं सीधा गई जानकी दादी के पास। वो बड़ी लंबी हिस्ट्री है, समझा। ये तो मैंने आपको चार्ट में बता दिया। तो इन Uh, दोनों को हमने देखा और इससे बहुत लाभ लिया। पर बाबा ने मेरा भविष्य बताया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मेरे को ऐसे ऐसे मैनेजर चाहिए जो चारों तरफ चक्कर लगावे सेंटरों पर और बाबा को आकर के वहां का समाचार सुनावे। तो उस समय तो सेंटर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, परंतु बाबा ने उस समय हमको बताया कि तुमको चारों तरफ चक्कर लगाना है और बाबा को सारे समाचार आके सुनाने हैं। तो हमारा पाठ धीरे धीरे कैसा खुल गया मालूम नहीं। फिर वही काम किया हमने, चारों तरफ चक्कर लगाए, ऐसा रहा। इतना सुनाओ, uh, फिर वो बताऊं जी सूक्ष्म जी बताऊं। जी actually Didi has taken this Brahmin life, this birth from Mama itself. She met Mama when Mama went to Mumbai, and it was a very beautiful meeting. And when and Didi gave her hand on, with to Mama, and Mama told Didi that you have given your hand to God and to me, so you should never leave this hand, because if you leave this hand now and when you go to Dharamraj, at the end, then Dharamraj will show you this photo that you gave your hand to Mama and you left that hand. So you should not leave this hand, and you should surrender and do service. That's the direction Mama gave Didi. And when Didi came to Madhuban, she met Brahma Baba, and Didi was just 16 years old, and Brahma Baba saw Didi, and Brahma Baba said, you have grown up now, you should go for service. And so that's how she came in contact with Mama and Baba, and she started doing service. And Baba also told Didi that you should move around, go around and see the centers, and you should give me what's going on in the center. Even though there were not many centers at that time, still Brahma Baba gave the direction to Didi that you should roam around, move around in different, different parts of India, different centers, and you should give me the news what is happening there. दीदी सूक्ष्म वतन की जो बात पूछ रहे सूक्ष्म वतन का, पहले हम लोगों को भी सूक्ष्म वतन में जाना बड़ा कठिन लगता था। बाबा बोलता था बच्चे हमेशा बाबा को तुम सूक्ष्म वतन में जाओ, जाके मिल के आओ, परंतु डिफिकल्ट लगता था। बाहर का आवाज बंद कर तो डिफिकल्ट लगता था। फिर उसके बाद जैसा आपको मालूम होगा ना, चिड़िया होती है, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, उसको चोंच मारेगी, उसको उड़ना सिखाएगी, उनको बोलो जाओ भले उड़ना सिखाएगी उनको, परंतु वो बेचारों के पंख नहीं होते, जरा फड़फड़ करेगी फिर वापस बैठ जाएगी। फिर चिड़िया क्या करती है, खुद उड़ करके ऊपर जाके बैठ जाती है, इसके ऊपर, झाड़ के ऊपर। फिर बच्चे देखते हैं माँ ऊपर जाके बैठ गई, तो कैसा भी करके वो भी उड़ना सीख जाते और उसके पास जाके बैठ जाते। तो हम लोगों के तो सामने बाबा बैठा था, बाप दादा, बाबा हमको ऊपर जाने के लिए बोलता था, हम काहे को ऊपर जाएंगे, हमारे सामने बैठा है तो ऊपर क्यों जाऊं। तो हमको तो जाने की बात ही नहीं होती थी, हमको डिफिकल्ट लगता था। परंतु बाबा ने देखा ये उड़ते ही नहीं है, तो खुद ऊपर जाके बैठ गए। तो जब ये बाबा ऊपर जाके बैठ गए तो हमारी बुद्धि आप ही ऊपर लगी। तो आप भी जब ये याद रखेंगे ना कि हमारा बाबा वहां बैठा है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सहज आपकी बुद्धि वहां चली जाए। अभी हमको वो याद नहीं करना पड़ता है, हमको याद ही है सूक्ष्म वतन, क्योंकि हमारा बाप दादा बैठा हुआ है ऐसा। like in those days when Baba used to tell all the children that you should go to settled region and you should have experience there. But Didi used to feel difficult to go to settled region, meet Bap Dada, take power and all that. But how a bird teaches his children to fly, so in the same way, Bapdada taught Didi to go to settled region and have experience. Baba used to tell that come to settled region, come and have experience there. So I also used to experience that when Bapdada is there, so we should go there. So it became a very natural process and we learned very naturally, and we used to go to settled region and experience Baba. ठीक है।
Is it all right, ठीक है brother? दीदी, ठीक है. Didi, thank you very much. I know it's very late there, but हमारे हिंदी थोड़ा है, हमारे दिल 12 है. So would like to give you some flowers. Full? या दीदी आपको फूल कुछ फूल हाँ जी देना चाहते हैं. हमारा दिल बड़ा हाँ है, लो, हिंदी छोटा है बोलते हैं. जी. समझा, मैंने समझा. Yeah, she understood what you said. Yes, हाँ she हाँ got it. हाँ, दे दीजिए. ले लिया मैंने, ले लिया, ले लिया, ले लिया. She received your मिला. flowers already. Yeah. Thank you. आप इतने फ्लावर बाबा के चेतन मिले, ये क्या फ्लावर है? हाँ, Yeah. आप ही सच्चे फ्लावर है बाबा के बगीचे के. बाबा ने देखो हम बच्चों को कांटों के जंगल से उठा के फूलों के बगीचे में बिठा दिया, फूल बना दिया. तो इन फूलों की वैल्यू है, जो बाबा के चेतन फूल है. Didi is ठीक है. saying that you are all flowers. Every Baba's child is a flower, and it's my pleasure to meet you all real flowers through this platform. Baba has made all of us, Baba transferred all of us from thorn into a flower. You know, Baba did that work. So you are all real flowers. That's what Didi is feeling when she's seeing all of you. Thank you so much for your time, Didi. Hope we can count with you in next time. There was some questions more, but I think it's late. So let's have some dristi, powerful dristi from Didi, and then we switch all the cameras and mics, and we take leave from her. If Savita Ben, if you can explain. या दीदी अभी पूरा करेंगे, आप दृष्टि देंगे सबको, उसके बाद सभी अपने कैमरा ऑन करके आपको हेलो करेंगे, फिर पूरा करेंगे. Om Shanti, Didi. Thank you. Thank you ओम so much. शांति. ओम शांति. आप सभी का दर्शन किया हमने. हाँ, ओम शांति. ओम शांति. Didi. Om Shanti. Ela está vendo a todos a hora. Ela está podendo vê-los a todos. अपनी भाषा में बोलो. जी Shanti, जी Didi. थैंक्स दे रहे दीदी आपको सब. Good night. ओम गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. Good night. आपके पास कितना बजे है? वहाँ Thank कितना you. बजे है अभी? यहाँ से 10 घंटा पीछे है दीदी वो लोग अभी. अच्छा, यहाँ 10 हाँ घंटा 10. पीछे. जी 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 माना अच्छा, दिन है अभी उनके लिए. Now it's उनका 11 दिन है. a.m. अभी 11 बजे हैं वहाँ दिन के. 11 बजे. दिन के 11. जी 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 दिन के 11 बजे. जी ठीक है. Ah. ओम शांति. Om Shanti, Om Didi. Bye bye. Shanti. Thank Take you, care. Baba. ओम शांति.